डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 में साइंस सेकंड के 2 चैप्टर फिनिश किए। अब हम साइंस फर्स्ट पे आ रहे हैं। इसमें 4th चैप्टर ले रहे हैं और ये जो चैप्टर है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ़ेक्ट्स, not effect, effects means there is more than one type of the effects electric current is showing. Okay, so what are they? They are heating effect and magnetic effect, and one thing more, the about something, the circuit. It is a general, but these two are main effects: heating effects and magnetic effects. Sometimes electric currents shows the heat, मीन्स कभी कभी आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर जो है गर्म हो जाता है, बराबर ना। ऑल दिस सच टाइप ऑफ द इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट्स। आपने कपड़े को आयरन करते हैं ना, हीटर भी जानते होंगे, इलेक्ट्रिक ओवन भी जानते होंगे। ऑल दिस आर डिपेंड्स ऑन हीटिंग इफेक्ट्स। सेकेंड थिंग इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेट मीन्स व्हाट? मैग्नेट मीन्स हैविंग 2 poles and their property are means unequal poles are attracting each other and similar poles are repelling each other. अगर 2 poles are similar they will repel each other, लेकिन opposite poles रहेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। सेम वे if electric current is showing the magnetic effect means it shows 2 type of poles, 2 type of ends, and because of these 2 ends they either repel or attract. If they will repel, so what will happen? They move away, and this continuation movement is nothing but motion of the motor. So in this magnetic effect subtopic we will study the motor, generator, dynamo. Okay, so let's start the chapter. और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ गया तो आपका फ्यूचर जो है आप इलेक्ट्रिक में ही जाने का सोचेंगे, अगर आप एक बार इसमें इंटरेस्ट दिखा दिए। और दूसरी चीज़, मैं इसको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में करके आपको ये चैप्टर फिनिश करूँगा, क्योंकि इसके अंदर 4 सब टॉपिक होंगे, इसके अंदर 4 सब टॉपिक होंगे। तो इस प्रकार 4 इसका सब टॉपिक, 4 इसका सब टॉपिक, और इसके पहले हम लोग कुछ जनरल टॉक करेंगे, जस्ट लाइक व्हाट इज़ सर्किट एक्सेट्रा। सो सी व्हाट इज़ द सर्किट। Here I am showing a normal circuit. These 2 lines are called battery. It is a symbol of the battery. Okay, so means this long one is the plus and smaller is the minus. Okay, while this is the bulb. So plus the conducting wire, एक वायर था, इधर से प्लस से स्टार्ट हुआ, it will move and again it will end at the negative terminal. So circuit means starting point and the finish point will be the same. Same diagram can be funny way. I can draw this way. Suppose I have very long wire. So what I will do? I will do like this. Suppose यहाँ पे कोई ट्री है, आप लोग देखते होंगे, और मेरे पास बहुत बड़ा वायर है, तो इसको रिंग करके इधर रख दूंगा, बाद में इधर ला के इधर रख दूंगा। आप लोग अपने एरिया में देखते हैं ना, किसी न किसी झाड़ के ऊपर पूरा वायर ऐसा केबल ऐसा लगा देते हैं और बाद में उसका सेकंड टर्मिनल ला के फिर उसको अटैच कर देते हैं। सो दिस इज़ आल्सो द सर्किट। सर्किट मीन्स वो कितना भी वायर रहेगा। एक और देख लो एग्जाम्पल, सपोज दिस इज़ द बैटरी एंड I have connected the same, but my wire is so long, it is moving here and there, but then lastly it will come here. This is the circuit. So correct way, in shortest wire we can take it. Yes, इसके बीच में गैप रहना चाहिए। अगर ये दोनों टच हो जाएंगे प्लस एंड माइनस, so you will get no marks. Okay, so this is the circuit. It is called electrical circuit. So any circuit has plus and minus, at least minimum battery having the 2 terminals plus and minus, and 1 appliances, and these appliances may be the battery or resistance or rheostat. Okay, thus circuit is a circular path. Just see in your textbook diagram, this is the battery, it is a plus, it is minus. अभी आप बोलेंगे सर इसमें और बाकी लाइन क्या है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इट इज़ सीरीज ऑफ बैटरीज लाइक दिस।
ये प्लस ए माइनस, एक बैटरी हो गया। नाउ प्लस माइनस, सेकेंड बैटरी, ए प्लस माइनस, थर्ड बैटरी। सपोज आई वांट वेरी पावरफुल बैटरी, सो हम क्या करेंगे, ईच अदर ये बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। ओके, नाउ दिस बैटरी विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सो इफ वन टर्मिनल विल बी प्लस, लास्ट शुड बी माइनस। सो ये आपका सीरीज ऑफ बैटरी हो गया। अब आप यहाँ से एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वेन एवर यू आर ड्राइंग द सर्किट, इफ़ यू आर नॉट शोइंग द direction of flow of the current, then you can lose your marks। तो एक चीज़ याद रखो, आपका जब भी ऐसा कभी सर्किट रहेगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस के लेफ्ट हैंड में, ये मेरा फैशन है, कभी भी आई ऑलवेज पुट द प्लस टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस टर्मिनल राइट हैंड साइड। अगर आपने ऐसा भी ड्रॉ कर दिया एस दिस वे, सपोज माइनस एंड प्लस, इवन इफ दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट वन, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट वन, लेकिन एक फैशन आप यूज़ करके रखो। जस्ट लाइक मैं कभी भी इसको यूज़ करता हूँ, लेफ्ट साइड में प्लस राइट साइड में माइनस। अब जहाँ भी प्लस रहेगा वहाँ आप एरो शो कर दो। ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट रीचेस टू द नेगेटिव। ओके, now just see the some terms and their diagrams. First is the resistance. Its diagram is this way. If you are making the straight, if you are drawing anything straight, it will the wire, कोई भी वायर, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, इवन सिल्वर का। ओके, लेकिन इसका फुल नेम रहेगा कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। एंड दिस कंडक्टिंग वायर इज ऑलवेज गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर एज यू स्टडीड इन द लोअर स्टैंडर्ड। लेकिन ये आप स्ट्रेट नहीं खींच के अगर ऐसा जिग जैग खींचोगे तो इसका नाम हो जाएगा रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज दिस वे, रेजिस्टेंस इज लाइक दिस। सो ये रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यूज रहता है, कोई 10 का रहेगा, कोई 15 का रहेगा, कोई 20 का रहेगा, कोई 100 का रहेगा। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, बराबर। जैसे मुझको एक बुशर्ट सिलाना है, ओके, और मैंने 2 लीटर कपड़ा लेके आया, 2 लीटर मैं क्लोथ लेके आया, और मेरा शर्ट सिलने को होगा 2 लीटर कपड़े में। तो आप बोलेंगे सर कपड़े में लीटर नहीं रहता है, मीटर रहता है, करेक्ट ना? कपड़े को मीटर में हम मेज़र करते हैं, लीटर में नहीं। वैसे अगर मैं बोल दिया ये रेजिस्टेंस 10 है, तो इसके आगे मीटर नहीं लगाने का, इसके आगे ओम लगाने का, OHM, ओम। ओके, 10 ओम। इसका अदर वे ऑफ राइटिंग इज लाइक दिस, 10 ohm. This is also 10 ohm. Okay. Second is the rheostat. Rheostat means what? Its another name is variable resistance. Variable resistance. रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या? जैसे आपको इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो, आपको एक बार 10 ओम का चाहिए रेजिस्टेंस, एक बार 15 ओम का, एक बार 60 ओम का, एक बार 17 ओम का, मीन्स मेनी टाइम यू वांट टू चेंज इट। सो क्या होगा कि आपको बहुत परचेस करना पड़ेगा ना, उसके जगह पे हम क्या लेने का? रिहास्टेड लेने का। रिहास्टेड, रिहास्टेड मीन्स व्हाट बेटा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका सिंबल ऐसे रहेगा और इसके ऊपर एक एरो ऐसे लगा देने का। Okay, this is the rheostat, means it shows according to our requirement, इसका वैल्यूज चेंज होता है, 10 ohm, 20 ohm, 50 ohm, 30 ohm, वॉट एवर। ओके, इसका दूसरा भी एक सिंबल है, किसी किसी आप अगर CBSE के बुक में देखेंगे ना तो इसका सिंबल ऐसे भी रहता है बच्चों, जस्ट लाइक वन जॉकी विल कम ऑन दिस। अगर जॉकी इधर रहेगा तो 10 वैल्यू, 20 वैल्यू, 30 वैल्यू, 40 लाइक दिस। और हमारे बुक में ऐसे भी है, यू कैन मेक एनी वे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस,
इसको शॉर्ट में बच्चों पीडी भी लिखते हैं। आपके बुक में कभी पीडी दिया तो समझ जाने का पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे मेरे पास मैंने कुछ इलेक्ट्रिक का वर्क है, मैंने उसका मेज़र किया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, तो हम 5 लीटर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिंस वी आर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, सो इसका वैल्यू 5 लीटर नहीं लिखे, 5 वोल्ट लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 5 वोल्ट। ओके, so it is a voltmeter and its symbol is like this, it is a plus, it is minus, it is voltmeter। और एक चीज़ याद रखेंगे, इसका कनेक्ट सर्किट में इसको कभी भी पैरेलल कनेक्शन देने का, पैरेलल, देर इज़ 2 टाइप ऑफ द कनेक्शन, पैरेलल एंड सीरीज। सो वोल्टमीटर कभी भी पैरेलल रहेगा, इसको याद रखना, भूलना नहीं। क्वेश्चन इज वाई इट इज़ कनेक्टिंग parallel way? Because potential difference is always between 2 points of the conductor. We always measure the potential difference between 2 points of the conductor. Suppose आपका यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर है, ये सब बॉम्बे से लेके पूना तक है, और इसमें कहीं फॉल्ट आ गया तो क्या करेंगे? जैसे ये मुंबई है, ओके, ये दादर है, ये बॉम्बे सेंट्रल है, और ये चर्च गेट है, करेक्ट है। इसमें कहीं फॉल्ट आ गया तो इंजीनियर क्या करते हैं, इधर मेज़र करना है तो ये वोल्टामीटर को ऐसे लगा देंगे, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, दे विल मेज़र द वोल्टेज वेदर वोल्टेज इज़ करेक्ट और नॉट। सो वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स, वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स, between 2 points we always measure the volt potential difference and that is indicated in volts. So it is parallel, see 1 2, it is the parallel, no? So it is voltage is always, voltmeter is always connected in the parallel, whereas series क्या है देखते हैं। Next equipment is the ammeter. Ammeter means which measures the flow of electric current, flow of electric current, okay student। so how is it, suppose मैं एक वायर ले लिए, कंडक्टिंग वायर, ओके, और इसमें मैंने इसको सर्किट बना दिया, सो क्या होगा, आई वॉन्ट टू मेज़र हाउ मच करेंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। सो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इसका सिंबल कैसा है, इसका सिंबल है ए, लाइक दिस, ओके। सो समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो शोइंग दिस वे, एक सर्कल के अंदर एक एरो रहेगा, आइदर दिस वे और दिस वे, ठीक है, लेकिन इसको पैरेलल नहीं लगाना है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि आपने अमीटर को ऐसा इक्विपमेंट को उठाया और ये यहाँ लगा दिए, इट इज़ द पैरेलल, दिस इज़ पैरेलल टू योर कंडक्टिंग वायर, दिस इज़ रॉन्ग। सो कैसे इसको कंडक्ट करने का सी। सो ये आपका सर्किट हो गया। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, कहीं भी आइदर हेयर और हेयर, कहीं भी इसको ब्रेक कर देंगे। दिस इज़ आवर अमीटर, ओके, एंड आई विल पुट इट हेयर एंड आई विल गेट कनेक्ट लाइक दिस। सो इट इज़ इन सीरीज। अगर यहाँ कनेक्ट नहीं करना है, इट्स ओके, डोंट कनेक्ट हेयर, यू कनेक्ट हेयर, ठीक है। सो मैंने इसको इधर कनेक्ट कर दिया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कभी भी अगर इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल के जस्ट साइड में अगर करते हो, यू विल बी ऑलवेज करेक्ट। यहाँ करोगे फिर भी करेक्ट है, यहाँ करोगे फिर भी करेक्ट है, यहाँ करोगे फिर भी करेक्ट है, यहाँ करोगे फिर भी करेक्ट। लेकिन बाय चांस अगर मैंने इधर कोई फ़ैन लगा दिया, ओके, माई फैन इज़ वर्किंग कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और आपने ये अमीटर को इधर लगा दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी इधर कंज्यूम करा, इधर मशीन इधर मेज़र क्या करेगा, कुछ नहीं। सो हाउ मच इज़ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग हियर, पहला मेज़र हो जाएगा, बाद में हमारा ये फ़ैन जो है कंज्यूम करेगा, हम देखेंगे उसको। लेकिन डोंट बियॉन्ड द एनी एप्लियंसेस, इट विल नॉट बियॉन्ड दैट बट बिफोर दैट वन, ओके ओके बच्चा। तो हमने अभी तक ये देखा कि वोल्टामीटर जो है इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, voltmeter always connected in parallel in any circuit, where ammeter measures the flow of the electric current and it is connected in series in any circuit, series, okay। एक चीज़ और बताना चाहूँगा,
ओमीटर जो बनता है ना, ओमीटर, इसके अंदर का जितना भी मेटल रहेगा, मेटल पार्ट्स रहेगा, उसका रेजिस्टेंस वेरी लो रहेगा। इसका रेजिस्टेंस जो रहेगा वेरी वेरी लो, बहुत लो रहेगा। अंडर, यहाँ मैं लो लिख देता हूँ, आई एम नॉट शोइंग विद द एरो। और जो वोल्टामीटर रहेगा उसके अंदर का जो भी मेटल पार्ट रहेगा जिससे बना है, तो उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई रहेगा। रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई इन द वोल्टामीटर। अगर डिस्टिंग्विश आ जाए लिख देने का कि वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई रहता है और अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो रहता है। वोल्टामीटर पैरेलल कनेक्शन देते हैं और मीटर को सीरीज में कनेक्शन देते हैं। वोल्टामीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है और मीटर जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करता है। वोल्टामीटर का यूनिट जो है, वोल्टामीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं और इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट्स है। और मीटर से हम फ्लो ऑफ करंट मेज़र करते हैं और इसका यूनिट जो है एम्पियर है। एम्पियर, एक साइंटिस्ट है एम्पियर, मिस्टर एम्पियर, उनके नाम पे है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज मैं आपको बता दिया। आप इस बेसिक का थोड़ा आप रिवाइज कीजिए और इसके बाद मैं सडनली इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो आपको सेंड करूँगा और कंटिन्यू इस चैप्टर के ऊपर। ओके, सो आप प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल दिस टर्म्स, ओके, एंड यू इन्फॉर्म मी।